नमस्कार। आज हम जानेंगे विल को लेकर कुछ जानकारी सीनियर हब द्वारका के मेंबर्स के संग। आपको बता दें 22 फरवरी 2024 को सीनियर हब द्वारका द्वारा सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में स्थित मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। यह मीटिंग विल को लेकर रखी गई। आपका सवाल जरूर होगा, आखिर ये विल क्यों होते हैं? छोटे शब्दों में बताया जाए तो संपत्ति के मालिक के जीवित रहते आमतौर पर बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन जब संपत्ति के मालिक का देहांत हो जाता है तो बहुत सामान्य है कि परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में वसीयत का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अपनी इसी समस्या को लेकर सीनियर हब द्वारका के प्रेसिडेंट आर.के. जैन और विल को लेकर बताने के लिए सामने आए एडवोकेट पी.के. जैन। आइए जानते हैं वसीयत के महत्व और उससे जुड़ी कानूनी बातें। I am P.K. Jain, presently doing pro bono practice at Dwarka Courts, and I have my office in chamber number 420. And I am staying in Rajasthan Apartments. And prior to coming to this profession, I have had a long stint with the corporate sector for about 25 years, being in sales and marketing of tractors, jeeps, fertilizers, washing machines, refrigerators, and the brown and white goods. सर, जैसे कि आज सीनियर हब द्वारका ने यहाँ पे मीटिंग रखवाई है सेक्टर 9 में विल के पर्पस के लिए, तो विल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि विल क्या होता है? Will is basically first of all, will is a very neglected document. Nobody realizes the importance of the will. In fact, will speaks when the maker of the will becomes silent. Will is basically entrustment of the right of your property, movable and immovable assets after you leave for the heavens. To jot it down on a piece of paper as to what you want after you leave for heavens, what you want for your property to be done, you have to express in a document. That document can be registered also and unregistered also. As per the Registration Act, the registration of the will document is not mandatory, but it's always better if you register the document, for it becomes easier for you to do the mortgage or take loans on the same property which has been willed to you. And in case of unregistered, the genuinity of the bill can be challenged, and so many other legal hassles can come up. And of course, now if a person is in the hospital, dying on the deathbed, and he wants to write a will, then he is left with no other alternate than to make an unregistered will by making a doctor or a nurse as a witness. Sir, is will valid without registration? Yeah, will is very much valid without registration, unless, of course, as it is said, that government is the biggest litigator. Now, take for example, Haryana Urban Development Authority. They have made their separate rules under the executive power of theirs, as you call the delegated legislation, of course. In case of Huda, the will is required to be registered, otherwise they don't give effect to it. So why people need a will? So that there is no dispute in your heirs. Today, if I die and I have 3 daughters and 2 sons and they start fighting with each other to inherit the property of mine, just to put an end to those disputes after my life. Is it important to update the will? Yes, sometimes what happens after the will has been registered, maybe I acquire new properties. Or for example, I have a 2-story house, I make it 4-story, and at the time when I had written the will, it was 2 stories. For the further 2 stories, I can write a codicil, or I can destroy the first will and make a second one, in which I can include the newly acquired property or lately acquired properties. मेरा नाम शशि जैन है, मैं एसएसडी से जुड़ी हुई हूँ और इसके अलावा एसएसडी का लेडीज विंग है, वो भी हम ऑपरेट करते हैं। और हम एक्चुअली बहुत समय से सोच रहे थे कि सीनियर्स जो हैं हमारे, हम लोगों को लीगल इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, और क्योंकि अब हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी वगैरह की, हमारे बैंक बैलेंसेस के लिए हमें विल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं हम लोग जब इस ब्रैकेट में हैं कि और 10 साल 20 साल बाद हम रहें ना रहें, तो हमारे बाद जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको हमारे बच्चे कैसे आपस में डिवाइड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे,
हालांकि उम्मीद तो नहीं होती किसी को भी कि किसी के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, बट यू नेवर नो कि कब किसका दिमाग घूम जाए। तो इसलिए हमें एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हम लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो उनके लिए आगे चल करके बेनिफिशियल हो। और ये हमारे पास डिमांड भी आ रही थी सबके यहाँ से कि हमें किस तरह की एक सेशन होना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि बिल कैसे बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए। तो इसके बारे में आज हमने यहाँ पर एक लेक्चर रखा था, जो उसके लिए हमारे यहाँ एक लॉयर आए थे, मिस्टर पीके जैन, और उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई, छोटी छोटी बातें भी बताई, बड़ी भी बताई, जिससे हम लोगों को काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि आई ओपनर था एक तरह से, कि बहुत अवेयरनेस आई है उससे। और अपने आई होप कि लोग उस तरह से जाकर के बिल बनवा सकेंगे। और हमने उनसे आज ये भी कहा कि कोई वो वकील हमारे लिए अपॉइंट कर दे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, हमें जगह जगह जाकर के धक्के ना खाने पड़े। तो क्या प्रॉब्लम फेस जो कर रहे थे आप वो सॉल्व हुआ यहाँ पे? हाँ, जो भी मतलब हर किसी की तो सेम प्रॉब्लम्स नहीं होती, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी के कुछ है। तो जो प्रॉब्लम्स थी मुझे ऐसा लगा कि काफी हद तक मैं कहूँगी कि 90% तक प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हुई। कोई मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैसेज ये देना चाहूंगी कि हमें सभी को अवेयर रहना चाहिए हर तरह से, कि चाहे वो लीगल हो या टेक्निकल हो या कोई भी चीज़ हो, लोगों को और सोशल फ्रंट पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ही ना करना पड़े। और मैं यहाँ द्वारका सेक्टर 5 में रहती हूँ। तो आज के इस मीटिंग में सीनियर सिटीजन हब का जो ये हमारा मीटिंग हुई दिल्ली पुलिस के साथ में, साइबर क्राइम के बारे में उन्होंने इतनी बातें बताई। बहुत सारी बातें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या कभी किसी से सुनते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहती हैं, जब जरूरत पड़ती है उस समय ध्यान नहीं आता। तो जितनी बार भी वो बताई जाए उतनी बार समझ में आता है। और कुछ नई बातें भी जो एकदम नए साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने हमसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। इट वॉज अ वेरी वेरी यूजफुल सेशन। उसके बाद हमारा एक सेशन कैसे विल को बनाएं और विल से रिलेटेड किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं और उसमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं उनका क्या मतलब है, उसके ऊपर एक सेशन हुआ, जो कि मुझे लगता है कि हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल सेशन था। और उसको लेकर के दिमाग में जो बहुत सारे एक ख्यालात रहते हैं, बहुत सारी उलझने रहती हैं, विल के नाम से ही थोड़ा सा डर लगता है, वो सारी बातें आज क्लियर हुई। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत यूजफुल था और इस तरह के सेशंस होते रहने चाहिए, बार बार होते रहने चाहिए।